الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قیامت کے دن کے متعلق کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ قیامت کے اس ہولناکی والے دن مجھے اور آپ کو کوئی ایسا سہارا، کوئی ایسا سفارشی چاہیے جو ہمارے لیے سفارش کر سکے اور اس کی سفارش اللہ کے ہاں قبول بھی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں: من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ کے ہاں جو سفارش ہوگی وہ سفارش ہوگی جس کی اللہ اجازت دیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گی۔ تو ایک تو اس بارے میں مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں فکر کرنی ہے کہ آیا میں نے اپنے لیے کوئی بندوبست کیا یا نہیں کیا، میرا کوئی انتظام ہوا کہ نہیں ہوا۔ بہلول بڑا مشہور نام ہے۔ ہارون الرشید وقت کا بادشاہ ہے۔ بہلول کے ساتھ دوستی ہو گئی، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اپنے کارندوں اور اپنے سیکورٹی گارڈ کو یہ کہا تھا کہ بہلول جس وقت میرے پاس آنا چاہے اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بہلول اپنے دنیا میں مست، اپنے موج میں مست مجذوب آدمی سے کسی سے کہتے سنا کہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک دفعہ بہلول ہارون الرشید کی ہاں گیا تو ہارون الرشید نے بطور مذاق کے اس کو ایک چڑی ایک سٹک پکڑا دی کہ اگر میری مملکت میں، میری حکومت میں، میری رعایا میں تمہیں تم سے زیادہ کوئی بندہ بے وقوف نظر آ جائے تو اس کو ہی پکڑا دینا، اس کو ہی دے دینا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا ہارون الرشید کا کہ بھئی میری مملکت میں، میری رعایا میں، میری حکومت میں تجھ سے زیادہ کوئی اور بندہ بے وقوف نہیں۔ اس نے لے لی اور رکھ لی اپنے پاس۔ کافی دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینہ گزر گیا۔ بہلول نے کسی کو کہتے سنا کہ ہارون الرشید سخت بیمار ہے اور بستر پر ہے۔ حکومتی کام شام بھی، ذمہ داریاں بھی تقریباً چھوڑ بہلول چلا گیا۔ ہارون الرشید نے بہلول کو دیکھتے ہی ایک آہ بھری اور کہا: بہلول بڑا لمبا سفر ہے، تیاری کوئی نہیں ہے۔ بہلول ہارون رشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا: بادشاہ سلامت، کہاں کا سفر ہے؟ کب تک واپس آ جاؤ گے؟ کہنے لگا: بہلول جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اچھا، اپنے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں چوکی باگڑ تو چوکی، لکسیاں تو فلاں فلاں، یہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے کارندے ہوتے تھے، وہاں پر چوکیاں بنی ہوتی تھی، وہاں پر باقاعدہ بندے ہوتے تھے،
पीछे से कोई आ गया, उसका आओ भगत किया, इस्तकबाल किया, उसको फिर अगलों को दे दिया, अगलों को दे दिया, एक तरतीब होती है। तो आपने क्या इंतजाम किया है? तो हारून रशीद कहने लगा, बहलोल वो ऐसा सफर है, उसमें बंदा कोई ऐसा इंतजाम नहीं करता अपने से आ गया। बहलोल ने अगला सवाल किया, अच्छा क्या आप अपने लिए कोई बक्स, कोई पेटियां कपड़ों वगैरह के तैयार कर रखी? हारून रशीद कहता, बहलोल इसलिए तुझे लोग बेवकूफ कहते हैं, उस सफर पर जाने के लिए कोई अपने साथ बिस्तर, कोई अपने साथ कपड़ों का सूट नहीं लेकर जाता। बहलोल सवाल पर सवाल किए जा रहा है। हारून रशीद कह रहे, यार तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। बहलोल कहने लगा, अच्छा जब इतना लंबा सफर है, उससे वापसी भी कोई नहीं है, आपने अपने लिए तैयारी भी कोई नहीं की, अपने साथ किसी को लेकर भी नहीं जाना, अपने साथ कोई कपड़े, कोई सूट बूट भी नहीं लेकर जाना, और कहना कि वापसी भी कोई नहीं आना। दुनिया का हम आपके सफर को देखते थे, छोटा सा सफर होता, रास्ते साफ हो गए, छोटा सा सफर है, गार्ड साथ जा रहे हैं, छोटा सा सफर है, कोई बंदे साथ लगे हुए साथ चलते जा रहे हैं, छोटा सा सफर है, उसके लिए आप कपड़ों के ब्रीफ केस भर भर के साथ लेके जाते थे। ये तो दुनिया का छोटा सा सफर होता था, उसके लिए आपकी इतनी तैयारी होती थी, और आप खुद कहते हैं इतना लंबा सफर है और उसके लिए तैयारी कोई नहीं है। मुझे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई बंदा नजर नहीं आता। और वो चढ़ी उठाई और हारून रशीद को पकड़ा दी। हारून रशीद कहने लगे, तुम बहलोल को बेवकूफ कहते हो, इससे बड़ा अक्लमंद बंदा और। हकीकत हमारी भी यही है। अगर मुझे और आपको क़यामत के दिन की फिक्र हो कि क़यामत के दिन मुझसे क्या पूछा जाएगा, क़यामत के दिन मुझे क्या जवाब देना है, तो आज मेरी और आपकी जिंदगी ये न होती जो जिंदगी हमारी गुजरती। एक साथी से मैंने कहा, आज ही बात हुई, मैंने कहा यार टाइम पे आया करो, कहते जो सारे मिस्त्री लाए। मैंने कहा 11 महीनों में मिस्त्री लगने का टाइम नहीं मिला, अब रमजान के महीने में आकर ही टाइम लगा मिस्त्री लगाने का। नहीं जी मैं तो रोजे रखता। मैं कहा तू रख रहे, लेकिन जो मिस्त्री मजदूर है वो तुम्हारे घर में खा पी रहे गए, खाना भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, सारा कुछ जी। वो रमजान के महीने से हटकर मिस्त्री फारिग कोई नहीं होता। मैं कहा कितने चाहिए तुझे? ऐसे साली आ गई मिस्त्रियों की। नहीं जी हर बंदा फिर मिस्त्री नहीं बनता। मैं कहा ये नहीं, हमारा जहन बन चुका है। होना तो ये चाहिए था, अगर मुझे अपनी आखिरत की फिक्र होती, 11 महीने मैं रूटीन वाइज नमाजें वगैरह पढ़ के अपनी दुनियादारी साथ करता, और जो 1 महीना था रमजान का, ये सारा का सारा मैं किस काम में लगाता? आखिरत की तैयारी में लगाता, आखिरत की कमाई में लगाता। दिन के रोजे, रात की तरावियां, दिन के नवाफिल, रात के नवाफिल, तहज्जुद के नवाफिल, अव्वाबीन के, चाश के, जो मेरे से हो सकता होता, जो आम दिनों में मैं नहीं कर सकता था, वो रमजान के महीने में मैं कर। लेकिन अब तो हम काम पेंडिंग रख के ये रोजे जाके करेंगे, क्योंकि उन दिनों में और काम भी कोई नहीं हो। अल्लाह माफ फरमाए। ये मुझे और आपको फिक्र आखिरत की कोई नहीं है। वही बहलोल वाली बात है, हमसे बड़ा कोई अहमक, हमसे बड़ा कोई बेवकूफ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। हम अक्लमंद उसको कहते हैं जो अपने लिए जमीन खरीद ले। हम अक्लमंद उसको कहते हैं जो नौकरी जिसको मिल जाए। हम अक्लमंद उसको कहते हैं जिसका घर अच्छा हो। हम अक्लमंद उसको कहते हैं जिसका कारोबार चल जाए। अगर बड़ा अक्लमंद आदमी है, बड़ा अक्लमंद आदमी है, बड़ा अक्लमंद आदमी है, आखिरत के एतबार से वो कंगाल होता है। हुजूर ने फरमाया अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। मंदान नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, जो अपने बारे में ये जान सके कि मैं किसी का बंदा हूँ, मैं किसी के गुलामे में हूँ, मैं किसी का पाबंद हूँ, मैं आजाद नहीं हूँ, मैं मेरे जिम्मे कुछ काम है, मेरे जिम्मे कुछ फराइज है, मेरे जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह की बंदगी है। मन दान नफ्सहु, जिंदगी आमद बराए बंदगी,
जिंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी, अल्लाह ने मुझे और आपको जिंदगी दी है अपनी बंदगी के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अगर जिंदगी मेरी गुजर रही है, अल्लाह के बंदगी के बगैर गुजर रही है, तो जिंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी, कल क़यामत के दिन फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन का हुजूर ने फरमाया, ला तज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा। कल क़यामत का होलनाक दिन, सूरज सवनेज़े पर आ चुका होगा, जमीन तांबे के बनी हुई होगी, हर बंदा अपने हिसाब से उसको गुजरना होगा। लाइन में लग के चलता जा रहे अपना हिसाब देने के लिए। जब हिसाब के गाढ़ में पहुंचेगा, जब तक 4 सवालों का जवाब नहीं देगा, उस वक्त तक 1 इंच भी अपनी जगह से आगे नहीं हट सकेगा, 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकेगा। क्योंकि हुक्म उस दिन अल्लाह का होगा, हाकिमियत उस दिन अल्लाह की होगी, जिससे न कोई छुप सकता है, न कोई भाग सकता है, न कोई गायब हो सकता है। क़यामत के दिन की बादशाहत के बारे में अल्लाह ऐलान करते हैं, लिमनिल मुल्कुल यौम। और दुनिया के बादशाह हो, दुनिया में बादशाहत के दावेदारों, दुनिया में वजीर आजम और सदर का खिताब और लक़ब लेने वालों, आज के दिन का बादशाह कौन है? लिमनिल मुल्कुल यौम। कहीं से आवाज नहीं आएगी, खामोशी छाई हुई होगी, पूरे महशर के मैदान पर सन्नाटा तारी हुआ होगा। फिर अल्लाह खुद ऐलान कर देंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज के दिन का मालिक, आज के दिन का बादशाह, आज के दिन के तमाम इख्तियारात अपने पास रखने वाले अल्लाह की हुकूमत है। उस अल्लाह के सामने हाजिरी देनी है, हम में से हर एक ने देनी है, हम में से हर एक को इन सवालों का जवाब देना होगा। आज मैं जरा सवालात पर गौर कर लूं, मुझे इन सवालों के जवाब तलाश करने हैं। मुझे आज जो जवाब देना, कल क़यामत के दिन वही जवाब मेरे काम आएगा। पहला सवाल इंसान से जिंदगी के बारे में होगा, अन उम्रिही फीमा अफना। अल्लाह सवाल करेंगे, मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी अता की थी, जिंदगी किसकी दी हुई? अल्लाह की। किसकी अमानत है ये हमारे पास? देने वाले कौन? अल्लाह की। इंसान थोड़ी देर के लिए सोचे, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये जो हम दावेदार हैं, जमीन मेरी, मकान मेरा, घर मेरा, फलां चीज मेरी, फलां चीज मेरी, फलां चीज मेरी, कुछ भी नहीं है इसका। जमीन कब से चली आ रही है? एक बंदा हाथ चला रहा था ना, तो किसी ने उससे कहा, भाई तेरी ये जमीन? उसने कहा, मेरी नहीं, वारी मेरी चलती पई, मेरे से पहले वालिद करता रहा, मैं कर रहा हूं, मेरे बाद मेरी औलाद करेगी, बारी चल रही है। जब जिंदगी उसकी दी हुई, तो फिर वो पूछने का भी हक रखता है कि नहीं रखता? या तो मैं कहूं ना, मेरी जिंदगी है, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। जब वो खुद फरमाते अल्लाह, अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, तू जिंदगी कहां खर्च करके आया? जितनी भी जिंदगी 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 25 साल, 20 साल, जो मुल्क से पहले का वक्त है, उसके बारे में अल्लाह नहीं पूछेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो सीधा जन्नत में जाएंगे। अतफालुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के बच्चे वो सीधा जन्नती हैं, उनसे कोई पूछगछ नहीं, बल्कि वो वालिदैन के लिए सिफारिशी बनी। मुझसे और आपसे पूछ होनी है। जितने दिन में गुजार चुका हूं, जितने महीने, हफ्ते गुजार चुका हूं, जितने साल गुजार चुका हूं, इन सालों का, इन महीनों का, इन हफ्तों का और इन दिनों का मैंने और आपने हिसाब काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहे? आज तो कैमरे लगे होते हैं, दफ्तर में बंदा जाए, कैमरा लगा हुआ है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ कैमरे में महफूज हो रहा है। अल्लाह खुद कैमरे भी लगा चुके हैं, अल्लाह खुद बंदे के ऊपर निगरानी भी करते हैं। सूरह बलद में है ना, अयहसबु अल्लम यरहु अहद,
अयहसबु अल्लम यरहु अहद, मेरे बंदे से बेपरवाही, लापरवाही और गफलत की जिंदगी क्यों गुजार रहा? क्या समझता है तू, तुझे कोई देख नहीं रहा? अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, ऐसे आवारापन, ऐसे आवारगी की जिंदगी गुजार रहा जैसे तुझसे किसी ने पूछना नहीं है, तुझ पर कोई कुदरत ही नहीं रखता। जिस औलाद को पता हो ना बाप ने मेरे से पूछना है, माँ ने मेरे से पूछना है, वो जरा सोच समझ के बात करते हैं, सोच समझ के कदम उठाते हैं। जिनको पता है पूछना किसी ने तो वो फिर अपनी मर्जी करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या समझता है तुझ पर कोई कुदरत नहीं रखता? वअन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे मैंने तुझे जिंदगी दी थी, तू जिंदगी कहाँ खर्च करके आया? अगर मैं अपनी जिंदगी को देख लूं, मेरी सारी जिंदगी तो दुनिया को बनाने के लिए लगी हुई, मैं तो सारी जिंदगी दुनिया को बनाने में लगा चुका। मैंने अपने रब के लिए क्या किया? अपने रब की रजा के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कौन सा काम किया है? आज से मैंने और अपने आप से सवाल करना है। दूसरा सवाल होगा वान शबाबिही फीमा अबलाग, मेरे बंदे इस तेरी जिंदगी में एक मोड़, एक मौका तेरी जवानी का भी आया था, तो अपनी जवानियां कहाँ गवा बैठा? तो अपनी जवानी की ताकत को किस जगह खर्च करता रहा? वान शबाबिही फीमा अबलाग, दूसरा सवाल इंसान से उसकी जवानी के मुताल्लिक होगा। हम तो कहते हैं ना जवानी पता नहीं क्या क्या क्या, नहीं नहीं, इस जवानी की जो इबादत है इससे बढ़कर अल्लाह को और कोई महबूब इबादत नहीं। जवान के आंख से निकला हुआ आंसू जहन्नम के सारी की सारी आग को बुझा देता है। जवानी की किए हुए सजदे अल्लाह फरिश्तों को दिखाकर अल्लाह उस पर फख्र करता है। जवान की तौबा पर अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है, खुशी से झूम उठता है कि एक जवान ने जवानी में तौबा कर। तो दूसरा जो सवाल होगा वो जवानी के मुतालिक। हम ही समझते हैं अभी जवानी है, कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा, फिर कुछ ना कुछ अल्लाह का नाम ले लेंगे, मस्जिद आबाद कर लेंगे, मसीतड़ बन जाएंगे। लेकिन जो जवानी की इबादत है, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, जवानों अपनी जवानी में सजदे कर लो, अपने रब को राजी कर लो, नहीं तो फिर बगैर सजदों की नमाजें पढ़ोगे। और आज हकीकत है जो हम इशारे की नमाज पढ़ते हैं, कुर्सी पर बैठ के पढ़ लेते हैं या बैठ के पढ़ते हैं, उसमें सजदा है कहां? सजदा उसमें नहीं है तो सजदे की लज्जत कहां से आती? जवानी है, इस जवानी में तू लंबा सजदा कर, इस जवानी में तू लंबा क़याम कर, इस जवानी में तू लंबा रुकू कर ले, अपने रब को राजी करने की कोशिश कर। हदीस में आता है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जवानी में इबादतें करता रहा, बूढ़ा हो गया, वो इबादत न कर सका, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं इसके लिए इसकी जवानी की इबादतें लिखते रहो। हुकूमत पेंशन दे और बोनस दे और फंड दे, अल्लाह की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। जरा हम अल्लाह वाले बन के तो देखा, अल्लाह की तरफ हम रुजू कर तो ले, अल्लाह की तरफ हम आए तो सही। ऐसे इबरतनाक किस्म के वाक़यात है और ऐसे हकीकत पर मबनी वाक़यात है कि जवान अपनी जवानी में कैसे अपने अल्लाह को पाते। सबसे बड़ा वाक़या मेरे और आपके सामने सूरह काफ में मौजूद है। चंद जवान थे, कैसे उन्होंने पूरे मुआशरे के साथ टक्कर ली, हुकूमत वक्त के साथ टक्कर ली, अल्लाह की तरफ गए। जब अल्लाह की तरफ गए तो अल्लाह ने फिर उनको कैसा बचाया, कैसा अल्लाह ने उनके लिए इंतजाम किया। 309 साल तक अल्लाह ने उनको सुलाया, न उनके जिस्म खराब हुए, न उनको भूख महसूस हुई, न उनको प्यास का पता चला, न उनके लिए कोई और मुश्किल मुसीबत बनी। 309 साल बड़े मजे का सोकर जब उठते हैं तो कहते हैं पता नहीं अद्धा एक दिन सोते हो। कैसे अल्लाह इंतजाम करते।
आज मैं कहता हूं अगर जवानी में मैंने अपना फ्यूचर मुस्तकबिल नहीं बनाया तो मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। जवान, तेरा मुस्तकबिल दुनिया नहीं है, मुसलमान का मुस्तकबिल आखिरत है। यहाँ पर तो चल चलाओ का जहान है, आज मैं कल कोई और, आज मेरी बारी कल किसी और की बारी, और अब तो और डरने की जरूरत है, क्योंकि आजकल जितनी अमवात जवानों की हो रही है इतनी अमवात बाबों की। बहुत सारे जवान जा रहे हैं। पहले तो हम समझते थे हम बूढ़े होंगे फिर तौबा कर लेंगे, दाढ़ी में सफेद बाल आएंगे फिर दाढ़ी रख लेंगे, और फला होगा तो फिर ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तो फिर ये कर लेंगे। अब तो वो भी बहाना नहीं बचा। इसलिए दूसरा सवाल क्या, पहला सवाल क्या होगा, जिंदगी कहाँ गुजारी, दूसरा सवाल होगा जवानी कहाँ खर्च की, तीसरा सवाल वअन मालिही मिन ऐना इक्तसब व फीमा अनफक, तीसरा सवाल माल के मुताल्लिक कहाँ से कमाया था और कहाँ खर्च किया था। तो इस बारे में भी हम पाबंद हैं, कमाने में भी पाबंद है, हलाल कमाना है, और खर्च करने में भी पाबंद है। हलाल जगह खर्च करना है, हराम चीजों पर खर्च नहीं करना। हराम पर खर्च कर गया उसकी पूछ होगी, हराम कमाया उसकी पूछ होगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 1 रुपया हराम का खाया उसकी नमाज 40 दिन तक उस बंदे की नमाज कबूल नहीं। जिसका एक लुकमा हराम की ग़िज़ा बन जाए, हराम का एक लुकमा उसका जुज़्व बदन बन जाए, ग़िज़ा बन जाए, तो अल्लाह उस बंदे के ऊपर जन्नत को हराम करार दे। तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई ऐसे मेरे से मामला हुआ तो फिर मामला खतरनाक है, मैं तौबा अल्लाह से मांगू, तौबा ताइब हो जाओ। जिसका खाया उसका पता है तो उसको वापस कर दो, उसकी तरफ से साले सवाब करता रहूं, उसके नाम पर सदका देता रहूं, और कोशिश ये की जाए कि मैं जायज जगह पर अपना माल खर्च करूं, बिदअत पर, रसूमात पर, रस्मों पर, रिवाजों पर। इस पर हम बहुत खर्च कर लेते हैं, लेकिन जो सवाब की जगह है, जो जायज जगह है, जो हलाल जगह है, जहां मुझे खर्च करना चाहिए वहां पर मैं खर्च करने के लिए तैयार नहीं। दो सवाल ये हो गए, माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था। एक बनाते तो एक पता बना। और आखिरी सवाल है, अपने इल्म के मुताबिक तूने अमल किया था कि नहीं किया था। जितना तुझे पता था उतना तूने अमल किया कि नहीं। चलो सारे मौलवी ना सही, लेकिन दीन का मोटा मोटा इल्म तो सबको है ना। नमाज का किसको नहीं पता, रोजे का किसको नहीं पता, ज़कात का किसको नहीं पता, गुनाह का किसको नहीं पता, जायज नाजायज का किसको नहीं पता, हराम हलाल का किसको नहीं पता। ना जाए बंदा बारीकी में, ना जाए बंदा मुस्तहबात और आदाब और उसके मुबाहत में कि ये काम मेरे लिए मुबाह है कि नहीं है, ये काम मेरे लिए मुस्तहब है कि नहीं है। मैं फराइज का इंतजाम करने वाला बन जाऊं, वाजिबात को अदा करने वाला बन जाऊं, हराम से अपने आप को बचा लूं। इतना मुझे पता है, यही चीज मुझे जन्नत ले जाएगी। और अगर मैंने इसके मुताबिक भी नहीं किया अमल, अपनी मर्जी की, जब दिल किया काम कर लिया, नमाज पढ़ ली, जब दिल नहीं किया नहीं पढ़ी, जिस दिन दिल किया रोजा रख लिया, जिस दिन दिल नहीं किया उस दिन रोजा नहीं रखा, ये तो फिर मैं अपने आप को फंसा रहा हूं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि मुझे और आपको दीन सीखना है। ये मेरा और आपका बहाना नहीं चलेगा, ये मुझे तो पता ही नहीं था। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जैसे जुमात वाले कहते हैं कि इतना दीन सीखना जिससे 24 घंटे के जायज नाजायज, हलाल हराम और जायज नाजायज, फराइज और वाजिबात का बंदा को पता चल जाए। इतना इल्म सीखना हर मर्द औरत पर फर्ज ऐन है। 24 घंटे की जिंदगी मेरी शरीयत के मुताबिक उसकी मुझे परवाह कोई नहीं। मैं नमाज पढ़ता हूं तो वो भी ऐसे पढ़ता हूं जैसे मुझे आती नहीं। कलमा मेरा अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ। सूरह फातिहा में पता नहीं कितनी बार सुन चुका हूं,
गाना मुझे याद होता है लेकिन सूरह फातिहा इतने बार सुनकर मुझे सही तरीके से याद नहीं। कुरान पढ़ना, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मेरे पास सबसे बड़ा बहाना है जी, ऐसी तो पढ़े कोई नहीं, ये बहाना कोई नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। आज हुकूमत ऐलान कर देना, देखो फिर पढ़ते सारे के नहीं पढ़ते। सुना है कि सदर जिया ने ऐलान किया था कि भाई अब हर बंदे को नमाज पढ़नी पड़ेगी, बाबे नमाज सिखने लग गए। हुकूमत के डर से, इंतजामिया के डर से मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अहकमुल हाकिमीन का डर, असल में वो रहीम है, अपने बंदे के साथ छूट वाला मामला करते हैं। इस वास्ते हमें कोई खौफ और खतरा, हमें पता है उस अल्लाह ने हमें कौन सा किसी के सामने दिखा, लेकिन किसी को छूट का मिल जाना ये मतलब नहीं है कि बंदा बिल्कुल ही लापरवाह हो जाए। इसलिए अपने बारे में फिक्र करनी है। रमजान का ये महीना मुझे और आपको इस बारे में फिक्रमंद कर दे कि मैंने अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, मैंने अपने आखिरत के सवालों का जवाब तैयार करना है, मैंने अपनी आखिरत के लिए नेकियों का ढेर सारा खजाना जमा करना है, मैंने अपनी आखिरत में रुसवाई से बचने के लिए एक भी गुनाह अपने जिम्मे बाकी नहीं छोड़ना। और जितने भी नेकियों का काम है, नमाज का पढ़ना है, तिलावत करना है, और जितने 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 नेक काम है उन सब कामों में मैंने अपने तौर पर हिस्सा लेना है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वाफ़ु अन्ना। करीम अल्लाह, रहमत और मग़फ़िरत के दिन चल रहे हैं, हम सब के मग़फ़िरत के फैसले फरमा। तुझे राज़ी करने के लिए बैठक होती है, तुझे राज़ी करने के लिए बैठना होता है। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा, अपनी रज़ा नसीब फरमा। जो सुना सुना उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, अपनी बंदगी नसीब फरमा, अपनी बंदगी के आदाब अल्लाह हमें सिखा, अपनी बंदगी और अपनी बंदगी के लिए जो आमाल है अल्लाह वो आमाल हमें करने की तौफीक नसीब फरमा। अपनी नाफरमानी से हम सबकी हिफाजत फरमा, अपनी नाफरमानी से हम सबकी हिफाजत फरमा। सिरात मुस्तकीम नसीब फरमा, सिरात मुस्तकीम नसीब फरमा। हिदायत कामिला के फैसले फरमा, पूरे महल्ले पूरे चक को अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह सबको अपने बंदगी में ले आ, अल्लाह सबको अपनी बंदगी नसीब फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के बख्शिश के फैसले फरमा। रब्बे करीम जो वबाई अमराज है अल्लाह तू अपने फजल से हम सबकी हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। अल्लाह अगर वबाई सूरत है, हम अपने गुनाहों की वजह से अपने लिए हालात पैदा कर चुके हैं, अल्लाह हम अपनी तरफ से भी तौबा करते हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से तौबा करते हैं। अल्लाह सर के गुनाह माफ फरमा, तू राजी हो जा, अपनी रजा नसीब फरमा और हमारे लिए हालात को बेहतर फरमा, हमारे लिए हालात को बेहतर फरमा। मसाजिद और मदारस की रौनकों को खत्म न फरमा, मराकज और खानकाओं के रौनकों को खत्म न फरमा। अल्लाह इन जगहों को आबाद फरमा, इन जगहों को आबाद फरमा, हमें आबाद करने की तौफीक नसीब फरमा, हमें आबाद करने की तौफीक नसीब फरमा। जितने की जितनी परेशानियां हैं तमाम के तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसीबत में है अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर फरमा, जो बीमार है अल्लाह उसको शिफा कामिल आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा, जो बे औलाद है उसको नरीना और साले औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम के मग़फ़िरत के फैसले फरमा, हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमा, मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।